Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today I come with one more question from the same poem Absalom and Achitophel written by John Dryden. So before this question I have already completed two. One is political satire and the next one is biblical parallelism in Absalom and Achitophel. So this question is comment on Dryden's use of history in Absalom and Achitophel. As you know that ये जो पोइम लिखी गई है एक हिस्ट्री के स्टोरी पर ही लिखी गई है. डिस्कस एब्सैलम एंड Achitophel एज अ मिरर ऑफ द एज. तो एब्सैलम एंड Achitophel क्या है? उस कंटेम्प्रेरी टाइम को शो करता है, उस एज का क्या है? मिरर है. And the next form we can use summary of Absalom and Achitophel. So let's start. John Dryden was the greatest literary figure of the Restoration period. जो जॉन ड्राइडन है वो रेस्टोरेशन पीरियड के लिटरेरी फिगर हैं. He was a prolific means creative. He was a prolific writer having a many-sided genius. He was a poet, a dramatist and literary critic. He was the poet laureate of his age. वो अपनी एज के पोइट लॉरिएट भी रह चुके हैं. He made a remarkable contribution in the development of English language. In ancient time, he was called the master of satire. Dryden was the child of his age, the poet who best represents the spirit of the times. तो ये ऐसे पोएट थे जिन्होंने अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है. Absalom and Achitophel deals with a political crisis which England faced during the years 1679 to 1881. तो Absalom and Achitophel किस चीज़ से डील करता है? उस पॉलिटिकल क्राइसिस से डील करता है जो इस टाइम पर चल रहे थे. चार्ल्स सेकंड became King of England in 1660. His reign is generally known as the Restoration. That was an age of profligacy. Profligacy means अय्याशी, corruption and indecency. तो चार्ल्स सेकंड के टाइम पे ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा चल रही थी. एक्चुअल में जो Absalom and Achitophel है इट इज़ द स्टोरी ऑफ चार्ल्स सेकंड. लेकिन चार्ल्स सेकंड अभी इस पोएम में क्या है? डेविड जो कैरेक्टर है वो दिखाया गया है चार्ल्स सेकंड की जगह. दिस प्रोफ्लिगेसी इज रिफ्लेक्टेड इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ Absalom and Achitophel. टू प्लीज हिज सोवरेन मीन्स किंग, ड्राइडन एक्सटॉल्स मीन्स प्रेज करना. The time when polygamy was not a sin. Polygamy means more than one marriage करना. The time when polygamy was not a sin and when one to one was not cursedly confined. तो एक ऐसा टाइम था जब पोलीगेमी चलता था और एक से ज़्यादा मिस्ट्रेस या वाइफ रखने का कोई भी कर्सेडली कन्फाइंड इसके लिए नहीं था. When nature prompted and no law denied, promiscuous use of concubine means mistress and bride. मिस्ट्रेस होती है विदाउट मैरिज जो वीमेंस को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मिस्ट्रेस, एंड concubine means मिस्ट्रेस. The King David was a profligate and had a number of mistresses. Though he had no legitimate issue, had a number of illegitimate children. जो किंग है डेविड उनके कोई लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं था. उनकी बहुत सारी मिस्ट्रेस थी, एक वाइफ थी मिशेल और बहुत सारी मिस्ट्रेस थी. कोई लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं था, सारे बच्चे जो थे वो इलिजिटिमेट थे, मतलब वाइफ से कोई बच्चा नहीं था. ड्राइडन डिस्क्राइब्स नॉट शो, दिस इज कोटेशन, नॉट शो द रेस्ट for several mothers bore to God like David several sons before. The religious and political controversies of the day find an equally vivid representation in the poem. The political issue which stands out most prominently
इज द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन। तो एक क्वेश्चन जो अराइज होता था वो था सक्सेशन का, मीन्स सक्सेसर बनने का, कौन सक्सेसर बनेगा, नेक्स्ट किंग कौन बनेगा। एज द किंग हैड नो लॉफुल एयर, क्योंकि किंग का तो कोई लॉफुल एयर मीन्स कोई लिजिटिमेट बच्चा नहीं था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सक्सेशन हिज ब्रदर जेम्स ड्यूक ऑफ यॉर्क वॉज द लीगल एयर। तो जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग तो उसका जो ब्रदर जेम्स था जो कि ड्यूक ऑफ यॉर्क था वो ही एक लीगल एयर माना जा सकता था। बट ही वॉज अ कैथलिक एंड सो ही वॉज हेटेड एंड फियर्ड बाय द पीपल, क्योंकि वो एक कैथलिक था और लोग उसको हेट करते थे और वो लोगों से डरता था, क्योंकि उस टाइम में कैथलिक लोगों के साथ बहुत ही मिसबिहेव होता था। The country was divided into two political parties, the Whigs and the Tories. The Tories supported King and his brother, while the Whigs stood for the rights of the people and wanted to exclude James from the succession. Two parties बनती है, एक होती है Whigs, एक होती है Tories. Tories जो है वो सपोर्ट करती है किंग और उसके ब्रदर जेम्स को, जबकि विग वो कहती है कि जेम्स को हम नहीं मानते, जेम्स को हम सक्सेसर नहीं बना सकते। इट वॉज एट द इंस्टेंस ऑफ देयर लीडर सेफ्ट्सबरी दैट एन एक्सक्लूजन बिल वॉज ब्रॉट बिफोर पार्लियामेंट। तो सेफ्ट्सबरी के इंस्टेंस पे, यहाँ पे इंस्टेंस का मीनिंग एग्जाम्पल नहीं रिक्वेस्ट आएगा, तो सेफ्ट्सबरी के इंस्टेंस पे एक बिल लाया गया, एक्सक्लूजन बिल। द विग्स सपोर्टेड द क्लेम्स ऑफ मनमोथ, विग्स ने किसको सपोर्ट किया, क्लेम ऑफ मनमोथ को, मीन्स एब्सलम को, हु वॉज वेरी पॉपुलर टू थ्रोन एंड रूमर वर स्प्रेड दैट ही वॉज अ लिजिटिमेट सन ऑफ किंग। एक तो थ्रोन के लिए वो पॉपुलर था, दूसरा कि ऐसा र्यूमर था कि ये जो है वो किंग का एक लिजिटिमेट सन है, क्योंकि इसकी मदर के साथ जो है किंग ने सीक्रेटली मैरिज कर ली थी। एज द किंग हैड सीक्रेटली मैरिड टू हिज मदर लूसी वॉल्टर्स, द कंट्रोवर्सी ग्रू bitter and both parties enlisted the services of literary men to advocate their claims. It is said that the Dryden composed Absalom and Achitophel at the direction of the king himself. ऐसा माना जाता है कि किंग की डायरेक्शन में ही ड्राइडन ने जो है एब्सैलोम एंड एकिटोफेल लिखी है। इट्स पर्पस बीइंग to secure the conviction of Shaftesbury, who was under the trial at the same time. Dryden's masterpiece also mirrors the religious controversies of the day. तो उस टाइम के रिलीजियस कंट्रोवर्सी को भी ड्राइडन की ये मास्टरपीस जो एब्सोलम एंड एकिटोफेल है ये दिखाती है। द कैथलिक्स वर इल ट्रीटेड मीन्स वेरी बैडली ट्रीटेड एंड ओप्रेस्ड मीन्स उन पे क्रुएलिटी होती थी, उनके साथ गलत होता था। इन डिफरेंट वेज देयर टैक्सेस वर डबल्ड एंड देयर लैंड्स वर टेकन अवे फ्रॉम देम। दे वुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द क्राउन। तो क्राउन के अंडर मीन्स राज्य में उनको प्रॉफिट वाला कोई काम भी नहीं मिलता था। दे कुड नॉट बी टीचर्स। रिलीजियस passions raised at a new heights when the image and relics means dead body part, images and relics of the Catholics were burnt wholesale। तो उनके images उनके relics जो है उनको एक साथ जलाया जाता था। Catholics on their own turn tried to hit back, और उन्होंने दोबारा से उसको hit back करने की कोशिश की। The popish plot originated against such a background, while Titus Oates and his Whig friends swore that there was such a plot. The Catholic in their turn denied it on oath. Absalom and Achitophel also gives us vivid realistic portraits of prominent पर्सनैलिटीज़ ऑफ द डे। तो इसके साथ साथ हमें कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का भी पता चलता है
एब्सैलम एंड एकिटेफल में. It has been repeatedly admired as a portrait gallery even by the critics of Dryden. ड्राइडन ने जो पोर्ट्रेट्स कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है उसके लिए उसकी एडमिरेशन भी होती है. द फिगर्स रिप्रेजेंटेड फॉल इनटू टू ग्रुप्स में लोगों को प्रेजेंट किया है उसने, कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया है. द रॉयलिस्ट एंड द रिपब्लिकन्स, which are similar with the two political parties of the day. The king has been presented as mild and gentle, his only fault being that he was too lenient. Lenient means जो ज़्यादा सीरियस नहीं रहता, किसी भी काम को easy going लेता है. The Duke of Monmouth means Absalom. The Duke of Monmouth means Absalom has been sketched as a popular young man with handsome, attractive personality and graceful, charming manner. तो उसकी बहुत प्रेज की गई है कि बहुत ही हैंडसम पर्सनैलिटी था, चार्मिंग पर्सन था. ऑफ ऑल हिज मर्मर्स प्रोगैनी मीन्स औलाद, मर्मर्स प्रोगैनी वॉज नन सो ब्यूटिफुल सो ब्रेव एज एब्सॉलम. तो एब्सॉलम की यहाँ पे प्रेज हो रही है. द ट्रूथ ऑफ हिज पेनिज्रिक मीन्स किसी की प्रेज में स्पीच देना. द ट्रूथ ऑफ हिज पेनिज्रिक कैन easily be verified by a reference to contemporary realists. Similarly, the leaders of the opposite groups have been truthfully represented. Opposite group के leaders को भी truthfully represent किया गया है. The character of Achitophel is also true to history. He was a good judge. The king was kind to him, and he occupied coveted. Coveted means attractive position in the administration. तो एकिटेफल जो है इसको भी जो किंग जो है उसे मीन्स उसके लिए बहुत ही काइंड होता है एकिटेफल के लिए भी, और उसे बहुत ही अट्रैक्टिव कोवेटेड पोजीशन वो अपने राज्य में देता है. बट ही वॉज ओवर एम्बिशियस. एकिटेफल एज अ कनिंग मीन्स एक बुरा, एक इविल थिंकिंग वाला. अ कनिंग इंट्रीगर में जो किसी के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करता हो. तो एकिटेफल एज अ कनिंग इंट्रीगर फाइंड्स अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इन द पोएम. सिमिलरली इज द केस विद द अदर लेजर पर्सनैलिटीज. द पोलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्राइफ मीन्स कॉन्फ्लिक्ट. द पोलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्राइफ, the partly spirit, the influence of the class and the example of the French, all the contribution to rise the satire in the Restoration period. In this respect also Dryden is representative of his age. His best works are all satirical. उसके जो सारे वर्क्स जो हैं वो satirical वर्क हैं ड्राइडन के, जिसमें एब्सैलम एंड एकिटेफल, The Medal, the Macflacken are among the finest satires in English language. तो यहाँ पे थोड़ी सी बात ड्राइडन की भी आ रही है. The Restoration was an age of reaction against the unnatural restraints. Restraints means foundation. Unnatural restraints of the Puritan administration. तो ये जो टाइम है रेस्टोरेशन पीरियड जो है, जो अननेचुरल बाउंडेशन है उसके बारे में भी, जो प्यूरिटन्स की अननेचुरल बाउंडेशन है उसके बारे में भी बताता है, उसके अगेंस्ट क्या होता है ये भी बताता है. इट वॉज ऑल्सो एन एज ऑफ एलिजाबेथन्स टू द फॉर्मेलिज्म ऑफ द 18th century. Dryden's works represents both this reaction and transition. The Puritan government had closed the theatres and put the restraint on all the healthy enjoyment. Dryden is leading playwright who wrote
The best heroic plays and the best blank verse tragedies of the age. ड्राइडन ने हिस्टोरिकल हीरोइक प्लेस भी लिखे हैं और ट्रेजेडीज भी लिखी हैं. In his preface and critical essays, he advocates a strict adherence means obedience to classical rules. और अपने सभी क्रिएटिव राइटिंग्स में उन्होंने एक क्लासिकल रूल को फॉलो किया है. ये ड्राइडन के बारे में कुछ लाइन्स हैं, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप. इन दिस वे ही बिकम्स द हार्बिंजर मीन्स जो पहले इनिशिएट करे, मीन्स जो इनिशिएट करे, हार्बिंजर ऑफ द लिटरेचर ऑफ रीजन एंड गुड सेंस विच केम to its own in the early parts of 18th century. The portrait of Jimry or the Duke of Buckingham is also vivid and memorable. Jimry is described as a man who seemed to be a combination of innumerable temperaments. जिमरी के जो है टेम्परामेंट जो है इन्यूमरेबल हैं, बार बार चेंज होते हैं. There is a close resemblance between Dryden's sketch of the Duke of Buckingham and the account of his characters given by historians. तो बहुत सारा रिजेंबल है किस चीज़ में, एक तो ड्यूक ऑफ बकिंगम में और कैरेक्टर्स जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स जो ड्राइडन ने लिए हैं उसमें. शिमई और स्लिंग्सबाय बैथल who is shown as money-minded man is also drawn in accordance with historical facts. तो इन दोनों को भी हिस्टोरिकल फैक्ट के अकॉर्डिंग लिया गया है, इन कैरेक्टर्स को भी. His, ये छोटी सी कोटेशन लाइन है, His cook's brains were hot. The portrait of Titus Oates shows much bitterness and venom on Dryden's part. Venom is जहरीला. On Dryden's part by the villainy means बहुत ही नीच काम करने वाला. By the villainy of him is a historical fact and Dryden had the right to focus the attention of his readers on his villainy. Dryden gives us remarkably true picture of the temper, tendency and characters of English populace. Populace means population of English populace of the period. He especially dwells upon the fickleness means changeable, and the grumbling nature of English people. He calls them a headstrong, moody, murmuring race. तो एक छोटी सी कोटेशन लाइन है, headstrong, moody, murmuring race. तो इंग्लिश पीपल को वो ऐसा बोलता है. To conclude, this poem is thus on the whole a true mirror of the times. तो इस तरह से जो जो कैरेक्टर्स इसमें प्रेजेंट किए गए हैं, इस तरीके से ये जो पोइम है अपने टाइम का एक मिरर है. जो जिस टाइम में ये पोइम लिखी गई थी उस टाइम को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है. विद विच इट डील्स, जिस टाइम के साथ ये डील करती है. देयर इज़ नो twisting and no falsification of historical facts by him. तो कोई भी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स ड्राइडन ने यूज़ किए हैं उसके अंदर ना तो कोई ट्विस्ट यूज़ किया है उसने, ना ही कोई फाल्सिफिकेशन यूज़ किया है. मीन्स एज इट इज़ दिखाया है, जैसा था वैसा. देयर इज़ नो इन्वेंशन, कोई इन्वेंशन नहीं की. एंड फैब्रिकेशन, किसी भी तरह से उसे फैब्रिकेट नहीं किया. ऑफ एनी काइंड इन द पोइम, तो इस पोइम में हिस्टोरिकल फैक्ट्स को किसी भी तरह से फैब्रिकेट नहीं किया गया या कोई नई चीज़ उसके साथ ऐड नहीं की गई. ऑन द होल वी कैन जस्टली क्लेम हिस्टोरिकल फाइडेलिटी मीन्स जो एकदम सच है, ट्रुथ है. फॉर दिस पोइम एज वन क्रिटिक ऑब्जर्व्स, हिस्ट्री इन अदर वर्ड्स रिपीटेड इटसेल्फ इन एब्सैलम एंड एकिटेफल. तो इसमें ऐसा कहा गया है कि एब्सैलम एंड एकिटेफल में हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया है, क्योंकि ड्राइडन ने जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट किए हैं, जो स्टोरी प्रेजेंट की है, उसमें किसी भी तरह से कोई चेंज अपनी तरफ से उसमें नहीं लाया गया है. एज इट इज़ उसने प्रेजेंट किए हैं.
So this is the mirror of the A's. I hope you will like this, and if you like, then press the button like, subscribe. Thank you.